Hi guys, so let's start with lesson 5, the Indian economy. Now, when we start, they give you 3 sectors that they're going to touch about. 3 sectors. One is the primary sector, secondary and the tertiary sector. Now you tell me, the primary sector generally consists of what? What does the primary sector cover? प्राइमरीली किस जो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है? दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट नॉट ओनली एग्रीकल्चर, दे ऑल्सो टॉक अबाउट फिशिंग, ऑल दोज विच हेल्प इन डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर कवर्स योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. So in manufacturing also we've seen the various industrial policies which will come where government is trying to boost the manufacturing sector in India. They had also made something called as a Make in India campaign, where we want that throughout the world there should be manufacturing companies set up in India. The third sector is the tertiary sector. Can you tell me what does tertiary sector deal into? So the tertiary sector is mostly the service sector. इंडिया में कौन से सर्विस सेक्टर्स हो सकते हैं? सर्विस कहाँ हो सकते हैं? तो बहुत ही बड़ा सर्विस सेक्टर है. लेट्स सी, राइट फ्रॉम हाउ वी आर कोऑर्डिनेटिंग, इट्स अ सर्विस. Zoom ऐप, टेलीफोन, सो टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, योर हेल्थ केयर, दैट इज ऑल्सो कमिंग इन सर्विस सेक्टर. एजुकेशन, your transport, your insurances, everything comes under the tertiary sector. Yahan tak clear? 3 sectors, primary, secondary and tertiary. अब ये लोग के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं हम लोग. फर्स्ट, द प्राइमरी सेक्टर. ये तीनों ही सेक्टर में से मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा जेनरेट करता है? द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर. यू ऑल कैन अनम्यूट एंड टेल व्हाट डू यू थिंक, ये तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां से जेनरेट होता होगा? Tertiary. What others feel? Primary. Actually, India is a agricultural country. Around 58% of the population, India's population, is getting their livelihood from the primary sector. So agriculture हो गया, तुम्हारा forestry हो गया, fishing, और ये सब से तुम्हें लग रहा है छोटा सेक्टर है. India not only manufactures the goods, they also export. So total ये सेक्टर से कितना पैसा आया है? That is 18.53 ट्रिलियन, और यू कुड से 271 बिलियन का सेक्टर है ये. तो तुम जो फूड प्रोडक्ट्स, पूरे लॉकडाउन में अगर कोई बिजनेस चला है तो फूड प्रोडक्ट्स का ही चला है. वी ऑल ईटन मोर एंड मोर. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर बूस्ट हुआ है. नाउ मेजर इन्वेस्टमेंट्स वो बता रहे हैं. सो नोइंग दैट इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो दैट दे हैव कम. जो इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन कंट्री से आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दैट देयर इज इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इनटू इंडिया, और इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर. बट एग्रीकल्चरल या प्राइमरी सेक्टर में कितना पैसा आया? लेट्स सी. सो you'll be shocked that FDI, an inflow of 9.808 billion has been received for the primary sector. Okay, now let's see ये कितना investments आ चुका है. These are all facts that they are giving you. The investment worth of 8,500 crores has been received in ethanol production. Then ये एक important है MCQ के लिए, मेगा फूड पार्क्स भी बनने लगे हैं. There is a first mega food park was in Rajasthan, inaugurated in 2018. Mega parks क्या होते हैं? All the different kinds of stalls will be put up. People go out and see the different kinds of products that has been brought in. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनने चालू हो गए. व्हेन आई से इनोवेटिव मतलब क्या? नाउ देयर इज फैट फ्री, ग्लूटेन फ्री, सॉल्ट फ्री, दिस फ्री,
everything is there which has been set up now. ये एग्रो फूड इंडस्ट्री होता है. They have received a funding of 1.66 billion. Okay, and have done 558 deals. They've got so many mergers and amalgamations also worth 251 million. Now obviously there is so many facts. इतना तुम जितना remember कर सकते हो, main important ones I'll make you all mark. Rest all is fine as long as there are other concepts also in this chapter that also you need to know. ये तो खाली facts है, तो facts तुम read up कर सकते हो. The important ones I'll tell you. Like now, ये important हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए. व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द प्राइमरी सेक्टर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी. लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, समान निधि योजना. ओके, और दे हैव ट्रांसफर्ड अराउंड 2000 crores to the bank's accounts of more than 10 million beneficiaries. The government of India has come out with certain marketing and transport assistance schemes also, where financial assistance is given, where our agricultural products can be exported abroad, can be marketed abroad. Like for example, you must have heard in Dubai, not every kind of products from India can be exported. They have a certain quality criteria कि अगर राइस आएगा तो हमें सिर्फ बासमती राइस चाहिए, अगर अल्फोंसो आएगा, अगर हम लोग को मैंगोज चाहिए तो सिर्फ अल्फोंसो मैंगोज ही चाहिए. तो ऐसे काफ़ी स्कीम्स, गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स देते हैं कि ये लो आप मार्केटिंग करो ताकि हमारे इंडियन एग्रो प्रोडक्ट्स और बिके. फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसी भी बनाई है एक, और वो न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट, increase our exports to 60 billion US dollars by 2020 and 100 billion in the next few years. This is the export policy. अभी आगे देखते हैं. ये सब factual figures है which you can read. अब ये एक important है. You tell me कि जो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पॉलिसी क्या है. From foreign, जो foreign से जो पैसा आता है इन इंडिया, विच इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. सो मनी फ्लोज इनटू इंडिया, कैन बी ऑफ टू काइंड्स. ठीक है, इट कुड बी इन ऑटोमेटिक रूट और इट कुड बी इन अप्रूवल रूट. समझते क्या सीन है ये. सो फॉरेन से जो पैसा आता है वो दो रूट्स के थ्रू आ सकता है. या तो ऑटोमेटिक रूट आएगा. ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, नो आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड, नो आरबीआई अप्रूवल नीडेड. वेयर एज जो दूसरा है अप्रूवल रूट, उसमें द फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इनटू इंडिया ओनली आफ्टर आरबीआई अप्रूवल. नाउ यू टेल मी, एज अ फॉरेन इन्वेस्टर यू वुड प्रिफर कमिंग इन विच रूट, एफडीआई और ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट? एक में तुम्हें आरबीआई का अप्रूवल लेना है, एक में आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना है, तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे? ऑटोमेटिक अप्रूवल यू विल प्रेफर. तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दे आर ब्रिंगिंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन दी ऑटोमेटिक रूट. कि काफी सारे सेक्टर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है कि इसको ऑटोमेटिक में डालना है, इसको अप्रूवल रूट में डालना है. तुम मुझे बोलो सर्टेन थिंग्स लाइक रियल एस्टेट, जिधर हम लोग को लग रहा है तो हम बोल रहे नहीं रुको, एक काम करो उसको अप्रूवल में डालो. मेकिंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स दे विल से उसको अप्रूवल में डालो. बट एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर्स को बूस्ट करना है हम उसको कहाँ डालते हैं, ऑटोमेटिक रूट में डालते हैं कि यार आ जाओ इन्वेस्ट करो बिना आरबीआई के अप्रूवल के. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 100% FDI in marketing of food products, in food product e-commerce under the automatic route. So एक कंपनी अगर बनी है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट पूरा ही किसका आ सकता है, फॉरेन से आ सकता है. 100% इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम फॉरेनर्स. नहीं तो कभी कभार क्या बोलते हैं, नहीं आप आरबीआई का अप्रूवल लो फिर आओ.
So to boost this sector, they have allowed 100% automatic route where 100% investment can be made without taking RBI approval. अब दूसरा सेक्टर देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. ना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई है श्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है मेक इन इंडिया कैंपेन. नाउ यू थिंक द मेक इन इंडिया कैंपेन वाज अ सक्सेस? You'll get unmute and tell. So, in this, we are planning to become the 5th largest manufacturing country in the world by the end of 2020. So, efforts are being made, and with time, we'll come to know how successful these strategies were. अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना पैसा आया है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 76.82 बिलियन पैसा आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से. बिकॉज जितना इनफ्लोज आएगा ना, उतना हम लोग को फंडिंग मिल रही है, उससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मार्केटिंग, आगे एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट होगा. तो गवर्नमेंट जितना हो सकती है फॉरेनर्स के लिए पाथ ओपन कर रहा है. India is becoming one of the most attractive destinations for investments in the manufacturing sector. Can you tell me originally or previously कौन सी कंट्री के अंदर they people prefer to go and manufacture? England. In India, like generally manufacturing hub of India, world अगर पूछूंगा तो कौन सा है वो? सब प्रोडक्ट्स इधर बनते हैं, चाइना के अंदर बनते हैं. अब हम लोग बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक पीपल आर बॉयकॉटिंग चाइना, और जिसकी वजह से इंडिया का स्कोप बढ़ सकता है इफ दोज कंपनीज कमिंग आउट ऑफ चाइना एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन इंडिया. सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी विद द गवर्नमेंट कैन टैप. ओके, देन दे गिव यू अगेन फ्यू फैक्ट्स. मेजर इनिशिएटिव्स में देखते क्या है गवर्नमेंट ने किया है टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग. दिस they've made 35 मशीन पार्ट्स को हम लोग एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो मुझे बताओ, अगर कोई यहाँ पे कोई डील करता है इन ट्रेडिंग एंड दे इंपोर्ट द गुड्स, जब इंपोर्ट करते हैं हम लोग गुड्स, तो इंपोर्ट पे कौन सी ड्यूटी लगती है? इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और बहुत हाई होती है ये. तो जब हम लोग कोई स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल्स मंगा रहे अब्रॉड से, तो हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई लगती है. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बोल रहे हैं इंडिया को कि यार आप इतना हाई टैक्स लगाओगे तो हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको इधर आना ही नहीं है. सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, वी आर रिड्यूसिंग, और बल्कि एग्जेम्प्ट ही कर दिया 35 मशीन पार्ट्स फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी टू बूस्ट the handset production in the country. Not only that, एक बहुत दूसरा important point है the budget of 2018-19. ये मार्क कर सकते हो important MCQ के लिए. मुझे बताओ, as you all are doing CS, what is the tax rate applicable on companies? Reliance, Mahindra, Tata, कोई भी कंपनी देखोगे उनके ऊपर टैक्स कितना भरना पड़ता है उनको. What is the rate of tax? तो ये तुम्हें जनरली भी पता होना चाहिए. कितना रखा है ये लोग ने? 25%. तो दे हैव टू पे 25% ऑन ऑल कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर अप टू 250 करोड़. इसको ये लोग ने अभी 400 करोड़ किया हुआ है. सो आर दे बेनिफिटिंग द कंपनीज बाय इंक्रीजिंग दिस लिमिट? यस. तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं आपको सिर्फ 25% ही भरना है, नहीं तो नॉर्मली 30% है. तो गवर्नमेंट ने ये रेट को रिड्यूस कर दिया है कि भाई चलो ठीक है 30% मत भरो, 25% ही भरो. सो मोर एंड मोर कंपनीज वुड वांट टू कम इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. देन काफी सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं वो लोग, ताकि देयर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ऑल द डिफेंस मटीरियल्स तुम देखोगे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो. देन द थर्ड सेक्टर दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ टर्शियरी सेक्टर. देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है टर्शियरी सेक्टर के लिए, उसमें कितना FDI आया है एंड सो ऑन. नाउ द
स्कीम्स देखते डायरेक्टली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज देयर विच इज कॉल्ड एज अ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. अब ये जो स्कीम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो मुझे बोलो कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बूस्ट करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? Would they want to boost exports? Yes. So हम लोग जो एक्सपोर्ट्स है, नॉट ओनली गुड्स के एक्सपोर्ट्स, वाई नॉट सर्विस के भी एक्सपोर्ट्स हम लोग बूस्ट करना चाहेंगे. गुड्स तो समझ गए, चलो पार्ट्स बनाया, बाइक्स बनाई, हैंड मोबाइल फोन्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, वो सब एक्सपोर्ट करो, ठीक है. बट सर्विसेज भी तो एक्सपोर्ट हो सकती है. अब सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करोगे? मे बी देर इज सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, मे बी देर इज सम कंसल्टेंसी, मे बी इंश्योरेंस बिजनेस है, तुम अब्रॉड में लोगों को दो, तुम्हारा एजुकेशन हो गया, तुम वर्ल्ड वाइड सबको प्रोवाइड करो. तो ये क्या होगा? हम लोग बोल रहे हैं कि ये सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है. सर्विसेज ऑफ टूरिज्म एक्सेट्रा, बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं. अब ये सर्विसेज हम लोग खाली इंडियंस को ही क्यों दे? वाई नॉट इवन टू द वर्ल्ड थ्रू आउट? तो टू डू दैट व्हाट दे आर टेलिंग कि जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सोचो मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरे को क्या बोला कि आप एक्सपोर्ट करो. तो आई एम सेइंग ठीक है मैं एक्सपोर्ट करूंगा, बट थोड़ा मुश्किल है, दूसरी टेरिटरी में जाना है. इंडिया में तो कर सकता हूँ, अब्रॉड में जाने के लिए मैं इंटरनेशनली कम्पीट करूंगा, तो मेरे को कुछ तो बेनिफिट दो. तो गवर्नमेंट इज सेइंग ठीक है कि तुम जितना जितना एक्सपोर्ट करोगे ना, उतना उतना आपको बेनिफिट्स मिलते जाएगा. सो द एक्सपोर्टर बिकम्स रियली हैप्पी बिकॉज मोर द एक्सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी भी क्या, दे विल गिव मोर बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. अब बेनिफिट्स किस फॉर्म में है? सोचो मैंने आज एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. मेरा कोई लाइक जियो इज अ सर्विस प्रोवाइडर. वो सर्विस प्रोवाइडर्स अगर वर्ल्ड वाइड दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी ये लो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उसका परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, जितना तुम करोगे टर्नओवर का, तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स. तो वो बोल रहा है भाई ये स्क्रिप्ट क्या है? व्हाट इज ए स्क्रिप्ट? तो इट इज नथिंग बट लाइक वाउचर्स. ठीक है, वाउचर्स मिलते हैं जो तुम एनकैश कर सकते हो. देखो यहाँ पे क्या है, पहले बता दो क्या है. द सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट. दिख रहा है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स. तो क्या होता है समझते हैं. अगर सोचो बंदे ने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 1 करोड़ का किया है उसने, तो हम लोग उसको बोलेंगे जितना भी आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना, उसका सोचो 10% का आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगा. 10% ऑफ 10% ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिलेंगे तुमको ऑफ योर टर्नओवर. तो 10% कितना हो गया इसका? 1 करोड़ का 10% 10 lakhs. तो 10 lakhs के तुम्हें स्क्रिप्ट्स मिलेंगे. तो स्क्रिप्ट से होगा क्या ना, आपके पास में एक वाउचर होगा, वो वाउचर के अंदर लिखा है कि आपको 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा. तो मैं बोल रहा हूं ये 10 लाख का बेनिफिट का क्या करूं, मैं कैसे यूज करूं? तो मेरे जब भी गवर्नमेंट को टैक्सेस भरने आएंगे ना, तो मैं ये स्क्रिप्ट यूज कर सकता हूं. तो गवर्नमेंट बोलेगी इतना टैक्स भरो, तो मैं बोल रहा हूं देखो मेरे पास में 10 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये क्रेडिट यूज करो. तो जितना जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतना उतना मेरे पास में ये बेनिफिट क्रेडिट हो जाएगा. हैव यू हर्ड ऑफ कैशबैक? तो ये कैशबैक जैसा है कि जितना जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपके अकाउंट में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स. एंड दीज स्क्रिप्ट्स कैन बी यूज्ड टू पे टैक्स, कैन बी यूज्ड टू पे टैक्स. सर मैं तो ये भी एक स्क्रिप्ट देते वो लोग. अभी इतना 10% नहीं देते, 3 to 5% दे सकते हैं ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज. तुमने कितना कमा के दिया उतना आपके अकाउंट में डाल देंगे हम लोग. ये लो भाई आपने 1 करोड़ कमा के दिया,
ये लो 3% आपके अकाउंट में डाल दिए, आप इसको यूज कर सकते हो कहीं और यूज पे करने में। क्लियर है ना? फिर ये अपना हो गया, बात किया हम लोग ने एक्सपोर्ट के बारे में। फिर एक आता है डिजिटल कम्युनिकेशन। व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? जैसे हम लोग कर रहे हैं जूम और एनी ऑफ योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। नाउ दिस कंपनीज ऑल्सो यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट इंडिया, propel India. Propel means to boost India to grow higher, and all of this should be done through a secure manner. तो एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी बनाया, उसके अंदर हमारे 3 मिशंस है। दैट दिस टेक्नोलॉजी शुड बी सेफ, it should be able to connect people not only in India but also throughout everywhere, in the villages also, and it should be able to propel us further. Propel means push us ahead. Then so not too much is given, just a few highlights. फिर टूरिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर कर रहे हैं हम लोग, टर्शियरी सेक्टर, टूरिज्म के बारे में। सो इज गवर्नमेंट वर्किंग टूवर्ड्स टूरिज्म? Yes, so let's see what they've done. In order that you explore your own country, the government has made some must-see destinations for global travelers. मतलब if you go to see, आओ कभी गुजरात में, आओ कभी राजस्थान में, आओ कभी इंडिया में, ये कोई भी कंट्री का देखोगे ना, टूरिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड टूरिज्म को बूस्ट करना है उनको, तो कंट्रीज को बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है। एफर्ट्स में क्या रहता है, तुमको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने पड़ेंगे, व्यू पॉइंट्स, विच इज वन ऑफ द वेरी गुड टूरिस्ट कंट्रीज दैट यू नो। You all can unmute and tell. Sorry? France. Anything else? Sorry? Australia, Paris. Australia. सिंगापुर, इराक। जाके वापस भी आना है। ओके, सो या सो देन स्विट्जरलैंड, दुबई। अभी ये सब खाली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नो। ठीक है, तो ये बस खाली हम लोग बात कर सकते हैं गोवा की। अगर वहां तक भी नहीं गए तो देन लास्ट इज लोला। ओके, क्लियर है ना? लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर एक आता है दूसरा पॉलिसी इज अबाउट हेल्थ। नाउ हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो अ सर्विस सेक्टर। You know which is the most profitable sector in the world? कौन सा one of the most flourishing sectors है? तुमको शॉक हो जाओगे। इट इज कॉल्ड एज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में तुम मुझे बोलो, सारे बिजनेसेस लॉस में गए, कितने सारे बिजनेसेस लॉस में गए? कौन से बिजनेसेस में ये टाइम में कमा लिया? हेल्थ केयर सेक्टर, योर हॉस्पिटल्स, योर फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन्स, all of those sectors. Then not only that, even now healthcare में और भी आता है, where you have beauty parlors, you have spa treatments, you have etc. All of that is there. So we have made a health policy also for ensuring the health coverage and delivering quality healthcare services to all at a affordable cost. So policy खाली 2017। फिर एक education policy भी बनाई है, एक 2020 policy भी बनाई है ये लोग ने। So none of this they've given you in depth, it's just the headings that they've given you. फिर एक आता है FDI पॉलिसी, ये मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। हर साल ये FDI पॉलिसी बदलती है और उसके अंदर देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट में डाला है या कौन से सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट में डाला है। अगर ऑटोमेटिक रूट में डाला है मतलब गवर्नमेंट उसको क्या करना चाहती है, दे वांट टू बूस्ट दैट सेक्टर। और दूसरे सेक्टर्स जो रहते हैं जिनके ऊपर इतना गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना फॉरेनर्स को, तो उसको अप्रूवल सेक्टर में डाल देता है। क्लियर है ना? सो इफ यू गो टू सी मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स दे आर अलाउइंग 100% इन tourism, hospitality, allowing 100% in aviation, allowing 100% in air transport. In transport, we want foreigners to come in India and set up so that they can be set up as per international standards. Allow 100% in education sector, allow 100% in FDI. तो तुम देखोगे we are trying to boost all these sectors. Okay, insurance companies and so on.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दी एग्रीकल्चरल पॉलिसी. ये भी एक सर्विस है, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया. सो आफ्टर वी फिनिश दीज 3 सेक्टर्स, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द पॉलिसीज. अब पॉलिसीज किसके बारे में दी है? 2 पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग. वन इज योर पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया एंड व्हाट इज अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया. एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर टेलिंग यू. तो पहले देखते हैं यहां पे जो पॉलिसी बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चरल पॉलिसी. द एग्रीकल्चरल पॉलिसी में पहले से 5 ईयर्स के प्लान बनते थे, 5 ईयर प्लान्स. तो यहां पे देखोगे 5 ईयर प्लान बनते थे और टोटल ऑफ 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं. अराउंड 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हो गया अपना. तो ऐसे 5 ईयर्स के प्लान्स. हु यूज्ड टू मेक दिस 5 ईयर प्लान्स? एनीवन नोज दैट नेम ऑफ दैट कमीशन? जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, there was planning commission was made, and that planning commission used to give 5 years targets, and those targets में they used to focus on few aspects and they used to try to cover. तो मुझे बोलो, अगर क्या क्या टारगेट करेंगे वो लोग to boost agriculture? What all do you think will be there in the agricultural policy? So they will be talking about the high yielding seeds. फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनको सीड्स चाहिए, यू नो. देन वी कैन टॉक अबाउट इरिगेशन के बारे में बात किया होगा, पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया होगा, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वेयर हाउसेज, योर स्टोरेज इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, योर इक्विपमेंट्स. तो ये सब एग्रीकल्चरल पॉलिसी के बारे में बात किया होगा. So let's complete it. तो ऐसे 5 ईयर plans है. Now, when right at the time of independence, the first 5 year plan was made from 1951 to 1956. ठीक है. अब इनिशियली जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, डू यू थिंक हम लोग के पास में बहुत टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे? So here they are talking about the highest priority was given to increase the agricultural production because Britishers left India under the bus and now we had to, you know, construct ourselves. Nearly 1/3 or 31% of the total plans funds were allocated to agricultural sector. River valley projects were made, irrigation, fertilizers के बारे में बात किया था, okay? And the production of food grains increased by 36% in a span of 5 years. Now you tell me कि ये जो टारगेट्स बोले हैं एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स, तुमको लग रहा है 5 साल में सॉल्व हो गया होगा ये प्रॉब्लम? You think in 5 years it must be solved? बल्कि even today we have the same problem. We are not able to succeed. तो हमारे नेक्स्ट हमेशा 5 ईयर में वो सभी लिखा होगा. तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 5 ईयर फोकस्ड ऑन लिटिल बिट अपग्रेडेशन के साथ में दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज. थर्ड 5 ईयर प्लान में दे सेड कि इन द थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 टू 1966 था, इट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर इंडिया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया हैड फेस्ड अ वेरी बिग इशू. वी हैड अ चाइना वॉर, वी हैड अ पाकिस्तान वॉर, and after that there was a very big drought, water scarcity, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए थे. and the prime minister Mr. Shastri, he appealed the people to observe a fast for a week. क्यों ऐसा? क्योंकि it was called as a great crisis of food. So whenever you remember, whenever there is a war, the country has to suffer. तो ये ऐसा ही हुआ था कि फूड ही नहीं था हम लोग के पास में. चाइना के साथ में भी वॉर था और दिस, टू रिमेंबर दिस, वी हैड अ वॉर इन 1962 एंड 1965. देन आफ्टर दैट नाउ वी बी थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट 5 years हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के बारे में, कि ऐसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करो. तब धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आने लगा था. ग्रीन वेयर व्हीट एंड राइस को ग्रो करने के बारे में बात था, where they were focusing on rice, oil seeds.
Then the 5-year plan, next 5-year plan focused on poverty eradication, giving subsidies and loans to farmers, so on. Then came technology. तो ऐसे करते करते they had 12 5-year plans. They spoke about in the 10th 5-year plan they were talking about rural infrastructure के villages के infrastructure को अच्छा करना है, bringing technology in agriculture, marketing ways of reforming, वो सब दिया है. So not, you don't have to learn too much in this. फिर एक ये मार्क कर सकते हैं important जो अभी recent है, National Food Security Mission. In 2007, the government of India launched the National Food Security Mission to improve the overall crop production, especially of rice, wheat and pulses. तो ये मार्क कर सकते हो important, that which all crops are covered is rice, wheat and pulses, because these are widely used in India. So that is about food security mission. Then after the 12th 5-year plan, now we are talking of the industrial policy. ठीक है, तो just few facts were there, you can just read through. Now coming to the next one, industrial policy के बारे में. तो मुझे बोलो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या बात करेंगे हम लोग? कैसे इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो करना है, गवर्नमेंट का लाइसेंस कैसे इजी करना है, मोनोपली किसके पास में आ गई है और जो मिस यूज कर रहे हैं हम लोग को मोनोपली नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट देयर इज ओनली वन सप्लायर इन द मार्केट. वी शुड ट्राई दैट देयर इज मेनी अवेलेबिलिटीज, मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट. जो छोटे बिजनेसेस हैं विच इज कॉल्ड एज स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको हमें हेल्प करना चाहिए. यू थिंक लार्ज कॉर्पोरेट्स नीड हेल्प और स्मॉल कॉर्पोरेट्स नीड हेल्प? स्मॉल कॉर्पोरेट. सो उनको कैसे हेल्प करेंगे हम लोग? तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये लोग को लोन्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग. वी विल गिव देम लोन्स. नॉट ओनली लोन्स, वी विल ऑल्सो टेल द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट बाइज फ्रॉम देम, गवर्नमेंट परचेजेस फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर. गवर्नमेंट भी कितनी सारी चीजें बाय करती है, तो दे शुड गिव प्रेफरेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड सबसे हमेशा जो कॉमन रहेगा, हमेशा कोई भी ग्रोथ करना है इंडस्ट्री में, तो एफडीआई जो रेगुलेशंस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस, उसको इजी करेंगे कि आने दो पैसा जितना आ रहा है फॉरेन का. ओके, नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन सी है? 1948 में बनाई थी इनिशियली, फिर बाद में चेंज हुआ, 1951 आया, फिर 1956, और अभी जो चल रही है कौन सी है? 1991. Okay, policy. So let's see what is this industrial policy. Now again facts will be given. ये industrial policy बनाते क्यों है? For the industrial development we make these policies. When was the first industrial policy made? It was made on 6th April 1948. अब इसके क्या फीचर्स है समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, समझते हैं. ये लोग ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 हैज डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इन 4 पार्ट्स. समझते कौन से हैं? तो ये 4 पार्ट्स है. द फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ बिजनेस गवर्नमेंट ही कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट के पास में मोनोपली होगी. मुझे बोल सकते हो एनी सेक्टर इन विच गवर्नमेंट हैज मोनोपली? गवर्नमेंट, रेलवेज, तो अभी भी वो अपने हाथ में रेलवेज. एटॉमिक एनर्जी, वो भी बोलेगे एटॉमिक एनर्जी हम लोग गवर्नमेंट ही बना सकती है और उसमें डील कर सकती है. आर्म्स एंड एम्यूनेशन, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही डील करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, डील करेगी. फिर उससे थोड़ा नीचे जिधर व्हेन दे यूज द वर्ड पब्लिक दे आर टॉकिंग ऑफ गवर्नमेंट. पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर. इसमें क्या था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करेंगे. ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है. तो यहां पे कितने सेक्टर्स दिए थे? 3 सेक्टर्स दिए थे स्टार्टिंग में जो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी. यहां पे 6 इंडस्ट्रीज बताई है. दैट इज योर आयरन एंड ओर, कोल, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वायरलेस अपैरेटस, मिनरल ऑयल
दे वर कॉल्ड एज द की इंडस्ट्रीज और द बेस इंडस्ट्रीज. इसके अंदर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड इवन प्राइवेट सेक्टर will be allowed to continue. It was decided that the new industries in this category will henceforth be set up only by government. So new will be only government. New businesses जो होंगे वो सिर्फ by government only. और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको रहने दिया था. तो इसको 6 इंडस्ट्रीज थी. फिर अभी दूसरी इंडस्ट्रीज थी कॉल्ड एज कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर. इसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर अभी बिजनेस करेंगे बट इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज या कंट्रोल करते रहेंगे. तो ये कौन से सेक्टर्स थे? तो इसमें 18 ऐसी इंडस्ट्रीज रखी थी. उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा बट उसको सुपरवाइज कौन कर रहा होगा? गवर्नमेंट विल बी सुपरवाइजिंग योर वर्क, राइट. और जो ये तीनों में नहीं आ रहा है वो फिर कौन से सेक्टर में आएगा? 4th, all industries which are not included above will be the general categories. तो ये 1948 का है कि पहला वाला सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, दूसरी वाली नए वाले सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, तीसरा वाला प्राइवेट करेंगे और गवर्नमेंट सुपरवाइज करेंगे, 4th वाले सब कर सकते हैं, गवर्नमेंट इतना इंटरफियर नहीं कर रही है. तो मुझे बोलो ये इसका रेलेवेंस है कि आज ये पॉलिसी का? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ये 1948 की पॉलिसी है, वो खत्म हो चुकी है. फिर बाद में कौन सा आया? उसको रिप्लेस करके एक नई पॉलिसी आई विच इज कॉल्ड एज 1951 के अंदर. दैट वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. उसके ये ऑब्जेक्टिव्स थे कि स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, मोनोपोली प्रिवेंट करेंगे, रीजन्स को डेवलप करेंगे, ओके, एंड वी विल ट्राई टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज. तो ये पॉलिसी का था. इसको 2 पार्ट में वापस डिवाइड किया था. अब इसको कौन से 2 पार्ट थे? एक थे कि रिस्ट्रिक्शंस ही रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे. वन पार्ट ऑफ द लॉ विल बी टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ विल बी टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स, कि हम लोग क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं. सो दिस एक्ट प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्टिव. All measures were designed to curb unfair trade practice. What will we try to restrict? Unfair trade practice, unfair practices, and reforms हम लोग लाएंगे in various kind of sectors. फिर वापस ये हट के नई पॉलिसी आई. The 1956 policy was replaced by, the 1948 one was replaced by 1956. जो बात कर रहा था कि हम लोग स्पीड अप करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ टेल मी वन थिंग, अभी ये भी रेलेवेंट है क्या? नहीं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जो अभी हम लोग के ऊपर लग रहा है? दैट इज द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी. सो वी सॉ द 1948, it was replaced by 1951, this which was replaced by 1956, is now we are doing the लेटेस्ट वन, दैट इज योर 1991. समझते क्या सीन है? इसमें भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है. हाउ विल यू ट्राई टू बूस्ट इंडस्ट्रीज? तो हम लोग ट्राई करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे जितना भी हो सके. यू थिंक गवर्नमेंट शुड डू बिजनेस और गवर्नमेंट शुड गिव इट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर? व्हाट डू यू थिंक? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए कि प्राइवेट हैंड्स में दे देना चाहिए? प्राइवेट. तो वही बोल रहे कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस. गवर्नमेंट शुड नॉट डू बिजनेस, दे शुड रेगुलेट बिजनेसेस. तो जितना भी गवर्नमेंट के बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे बोल रहे कि यार हटाओ उसको, बिजनेस में नहीं जाना है, प्राइवेट के हाथ में दे दो और हम लोग प्राइवेट को रेगुलेट करेंगे. और प्राइवेट को भी हम लोग थोड़ा अपना कंट्रोल कम करते जाएंगे विद टाइम. और जितना आ सके फॉरेनर्स को पैसा लाओ, बिकॉज जैसे मनी आता है ना इंडिया में, इनफ्लो ऑफ फंड्स, तब ऑब्वियसली इनफ्लो होगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी. देयर विल बी जॉब्स एक्सेट्रा एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? द फॉरेनर्स माइट वांट टू लीव इंडिया इफ द political stability is not there in the country. So the any government का job रहता है to please the foreigners as much as practicable. Okay, then features of the policy.
बेसिक abolish the licensing राज, लाइसेंस राज जो है, गिव ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, डिसमेंटल कंट्रोल्स, तो जिधर भी कंट्रोल्स है उसको निकालो, अननेसेसरी कंट्रोल्स निकालो, डिस्पर्स द इंडस्ट्रीज, डिस्पर्स मतलब वाई इंडस्ट्रीज आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू स्टेट्स और फ्यू एरियाज, दे शुड गो अहेड इन रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, उनको वहां पे भी बूस्ट करना पड़ेगा. अब कैसे करते वो तुमको नेक्स्ट लेवल्स में आएगा, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल में. दे डिक्लेयर इट टू बी SEZ कि यार वो एरिया, वो विलेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो सारे इंडस्ट्रीज वहां पे चले जाते हैं क्योंकि वो टैक्स फ्री होने वाला है. तो दैट वे दे हैव सर्टेन पॉलिसीज वेयर गवर्नमेंट कैन ट्राई टू डेवलप अनडेवलप्ड एरियाज, लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. व्हेन आई से पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट सेक्टर. दे वांट टू लिबरलाइज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लिबरलाइज मतलब सिंप्लीफाई, यार यार आ जाओ पैसा है. तो इफ यू गो टू सी, जितने भी हैं हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे, वेयर आवर बिजनेसेस कैन इंक्रीज. सो इंडियाज इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली, बिकॉज उससे ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उससे ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. So we'll try to promote the small industries, give them loans which is called as credit, give them technological support which will help them in sale of their products, etc. Now after these facts, now we are coming to very important aspects after the policies and the sectors. The third part is called as balance of payment. Super duper important, you should know. Now you tell me, बैलेंस ऑफ पेमेंट सुना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होता है, दे आर कंपेयरिंग योर इंपोर्ट एंड योर एक्सपोर्ट. मुझे बताओ, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन दिस, क्योंकि एक्सपोर्ट्स करते तो पैसा अंदर आता है, इनफ्लो आता है, राइट? पैसा अंदर क्रेडिट होता है. और अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो माल अंदर आएगा, बट पैसा क्या होगा? आउटफ्लो. हमको पैसे वर्ल्ड वाइड देने पड़ेंगे, आउटफ्लो होगा या डेबिट होगा. सो व्हेन वी ट्राई टू, इन द एंड ऑफ द ईयर, वी ट्राई टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सा ज्यादा है. तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, सो वी कैन से, उसका फॉर्मूला एक दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक है. एक्सपोर्ट्स माइनस योर इंपोर्ट इज इक्वल टू योर ट्रेड बैलेंस. एक्सपोर्ट्स इनफ्लो होती है और इंपोर्ट्स आउटफ्लो होता है. तो दिस शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. इट शुड बी पॉजिटिव. तो अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा है, इसका मतलब वी हैव गॉट नेट इनफ्लो आया है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स अ स्टेटमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इंडिया ने दुनिया की कंट्रीज के साथ में या कंपनी एंटिटीज के साथ में क्या किया है? नेट इंपोर्ट किया है कि नेट एक्सपोर्ट किया है? It determines how much money is going in India or going out of India. ठीक है? तो ट्रेड बैलेंस हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पॉजिटिव हो. नाउ लेट्स सी, दे आर सर्टेन इकोनॉमिक टर्म्स. अभी इकोनॉमिक टर्म्स क्या है? व्हेन आई से द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट हुआ है, डेफिसिट मतलब क्या? Which is more, import or export? Import is more than export, then it is called as deficit. So then we won't be happy. तो अगर हमारे पास में पेमेंट ज्यादा हो गए तो हमको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी डेट में हो गए. We'll become in debt बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को पेमेंट करना है. सरप्लस हुआ, सरप्लस इज सुपर डुपर कूल. वेयर द एक्सपोर्ट्स आर मोर, वी हैव मोर कैपिटल, नेट इन हैंड ज्यादा है. ठीक है? अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं, दो टाइप के ट्रांजैक्शंस डिवाइड होते हैं जिसका कैलकुलेशन इंक्लूडेड होता है पेमेंट के अंदर.
मतलब जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पैसा अंदर बाहर कैसे होगा, पैसा क्यों एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि क्या डील हो रहा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही होगी. दैट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग डेल्ट, इट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डील करते हैं. फॉर एग्जांपल शेयर्स, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग बाय कर रहे हैं तो वो कहाँ आता है, ये सब बैलेंस शीट आइटम्स है और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा ज्यादा बड़ा एक्सपेंसिव होता है, कैपिटल की करंट? कैपिटल. तो कैपिटल में क्या होता है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट होती है. तो अगर मैं घर खरीदूंगा, ठीक है, सोचो कि मैंने दुबई पाम आइलैंड्स में घर खरीदा, तो ये मेरे एसेट्स को हिट होगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. अगर तुम सोचो मैंने लोन लिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. करंट अकाउंट क्या होगा, सामान खरीदा, तुमने कोई मशीन इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, तो ये किधर होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ये करंट अकाउंट. बाइफिकेशन समझ में आया? तो तुम मुझे बोलो, अगर तुमने एक लैपटॉप खरीदा अब्रॉड से, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में? घर, इफ यू हैव बॉट अ लैपटॉप लिया तो कौन से इसमें आएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब खरीदे तुमने, कोई सर्विसेज ली तुमने, कोई सोचो क्लासेस ज्वाइन करी, एजुकेशन सर्विसेज ली तुमने, तो ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा. अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, ओके, सम हाउस यू हैव प्रॉपर्टी इन दुबई यू हैव बॉट, तो इट विल बी योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों ही चीजों का कैलकुलेशन देखा जाता है. तो तुमको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी देखने पड़ेंगे कितने हो रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑल्सो. समझ में आया? नाउ लेट्स डू इट फ्रॉम द मॉड्यूल. बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट is about countries, India versus the world, etc. It monitors all international monetary transactions during a specific period. Maybe it could be calculated every quarter or every calendar year. All trades conducted by private and government sector are included in the balance of payment. It is about how much money is going in and how much money is going out. अगर पैसा अंदर आया तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हुआ है, क्रेडिट. और अगर पैसे देने पड़ रहे हैं अपने को तो क्या आएगा, वो डेबिट. व्हाट आई टोल्ड यू ऑल कि एक्सपोर्ट आता है, तो एक्सपोर्ट को पैसे अंदर आते कि बाहर आएंगे, मनी विल बी इनफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो inflow, so it will be called as credit. And import will be considered as a outflow of money wise, it is called as a debit. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये फॉर्मूला दिया ये लोग ने, बहुत ही सिंपल सा है. अब ये खाली E माइनस M ये सब ऐसा दिया है, बट टर्म क्या है, E is for export minus your import will give you your trade balance. अब ट्रेड बैलेंस कैलकुलेट करने में दोनों ही अकाउंट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग. कौन से दो? अगर मैं ट्रेड बैलेंस काउंट कर रहा हूं इंडिया का, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी देखने पड़ेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने ट्रेड हुए हैं, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी देखने पड़ेंगे कि कितना हुआ है. एंड एनी एरर्स का एडजस्टमेंट के लिए वो लोग ने अलग से दिया है, और तुम्हें तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाएगा. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी ऐड होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी ऐड होते हैं. फिर कभी तुम्हारा एडजस्टमेंट करना है कुछ प्लस और माइनस, तो वो भी कर लेंगे. ये एडजस्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि कभी कभार सेल्स रिटर्न हो सकता है, रॉन्ग एंट्रीज हो सकती है, तो उसके लिए भी वो लोग ने एरर्स और ओमिशन के बारे में बात किया. नाउ कमिंग ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड.
फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में मुझे बताओ कि क्या ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सेस ऑफ exports over import is called as favorable balance of trade. That is what every country will prefer. And exactly opposite is your unfavorable balance of trade. Okay, this you don't have to do. They've just given you few facts. Now coming to the next very important topic after the balance of trade, and then the chapter will get over. The last part, which is called as foreign investments. 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? एक है FDI, दूसरा है FII और तीसरा है FPI. क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. समझते? ये तीनों ही चीज पैसा कहां से आ रहा है? ये तीनों ही चीज में पैसा कहां से? कॉमन वर्ड क्या है? फॉरेन. तो ये सब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन से पैसा इंडिया में आ रहा है. इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज. तो ये तो कॉमन है. अब पहला देखते हैं, FDI पकड़ते हैं. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, they are like joint ventures for long term. Foreign direct investment. So when this is coming, like Tata's and Air Asia, they और Maruti Suzuki, Hero, Honda, तो ये 2 एंटिटीज मिलके साथ में बिजनेस करती है. तो एक फॉरेन एंटिटी और एक इंडियन एंटिटी मिलके बिजनेस कर रही है. ये टाटा और एयर एशिया में से मुझे बोलो कि इंडियन एंटिटी कौन सी है? Tata's is an Indian entity. It has collaborated with which entity? With a foreign company, foreign entity, and they are operating in India with a business called as Air Asia. ना मुझे बोलो कि एयर एशिया का कभी कुछ बिजनेस कम हो गया तो ये छोड़ देंगे क्या? एयर एशिया छोड़ के चली जाएगी कि साथ में ही रहेंगे ये लोग? So they will continue to be there together. So they are long term partners. ये लोग क्या करते? कुछ शेयर्स कंट्रीब्यूट बाय करते हैं, मशीनरी लाते हैं, कोई किस्म के एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं. जॉइंट वेंचर में ऐसा ही होता है, थोड़ा मैं लेके आओ, थोड़ा तुम लेके आओ और साथ में मिलके बिजनेस करेंगे. जस्ट बिकॉज इफ द शेयर प्राइस गोज डाउन, यू थिंक एयर एशिया विल सेल एंड गो अवे? यस और नो? No, because these are long-term part. You're like a business partner. They are joining, collaborating, and doing business together. They are not for trading purpose. They are for investment purpose. आगे देखते हैं दूसरा, जिसका नाम है FII, Foreign Institutional Investor. अब ये भी फॉरेन से पैसा है, बट इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. They have to be registered as FII and their main purpose is money, trading. न्यूज़पेपर में, तुम्हारा इकोनॉमिक टाइम्स में, न्यूज़ में देखा होगा FII ने इतना पैसा डाला, FII ने इतना पैसा पुल आउट कर लिया. अब ये लोग किस में डील करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. इनका काम क्या होता है कि वो अगर उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे वो लोग? बाय करेंगे. अगर उनको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो क्या कर देंगे वो लोग? सेल. So these FII bring a lot of volatility into the market because they come and go easily. Tell me one thing, which is better for India, FDI or FII? Which is better from India point of view, FDI or FII? FII क्या करते हैं? इन्वेस्ट किया, शेयर का भाव बढ़ा, बेच के निकल जाएंगे वो लोग. FDI क्या होता है? दे आर पार्टनर्स विथ यू, दे स्टैंड विथ यू थ्रू थिक एंड थिन. विच इज बेटर? FDI इज बेटर बिकॉज FDI में वो तुम्हारे दुख दर्द के साथी है, और ये FII को कुछ मतलब नहीं है, वो प्रॉफिट मिला बेच के निकल जाएंगे. फिर तीसरा एक लास्ट कैटेगरी आती है जिसका नाम है FPI. यहां पे कैसा था कि ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होता है.
they get registered with SEBI, that is the Securities Exchange Board of India, as a FII and then invest into the market. फिर तीसरी कैटेगरी आती है FPI. What if a foreigner is investing into India, a single investor is investing into India, like let's say Google ने invest किया था अभी Reliance में, या we can say Warren Buffett. Warren Buffett है, he is a richest investor in the world. He decides to invest in Reliance Industries. Now, isn't it a single investor? Is there this FPI और FII में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? इंडिविजुअल है कि इंस्टीट्यूशन है? ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन. ये पूरी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. और ये क्या है FPI? ये बंदा है एक इन्वेस्टर रहेगा, तो ही इज केपेबल ऑफ स्माइलिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है. नॉर्मल इन्वेस्टर है, मे बी मार्क जुकरबर्ग. But sir, even Google is an institution, right? Yeah, so here ये एक सिंगल इन्वेस्टर्स रहते हैं. FII जो आते हैं ना, लेट्स अंडरस्टैंड, ये सिंगल नहीं आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड, ये अपना स्टॉक मार्केट है. ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में एक रजिस्टर होता है एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. Then they come into India and then they invest, ठीक है, into the Indian companies. हम लोग को we don't know इसके पीछे कौन है, मतलब हम लोग के लिए कौन है ये. FII ने पैसा डाला, FII ने पैसा निकाला. तुम मुझे बता सकते हो कि इसके पीछे कौन होगा? वो बोलेंगे नहीं नहीं, वो पता नहीं कर सकते आप. ये एक इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर हुई है सेबी के साथ में और इन्वेस्ट कर रहा है. यहां पे जनरली क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है ये. यू कुड से दे आर लाइक अ इन्वेस्टर, सिंगल इन्वेस्टर, जस्ट लाइक अ पर्सन. सो दिस इज अ नेचुरल पर्सन एंड दिस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. गूगल हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड एज FII, समझ लो. तो ये बैकग्राउंड में हमें पता है कि गूगल ने इन्वेस्ट किया है. यहां पे क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है. हमको इतना खाली पता है कि फॉरेन से पैसा आ रहा है. सो फ्रॉम ऑल द थ्री कैटेगरीज, FDI, FII जो रहते हैं ना, सबसे करप्ट होता है. मैं तुमको समझाता हूं. ये जो FII होती है, FPI में तो पता चलता है पार्टी कौन है, इसमें ना हमको पता ही नहीं होता है. तो एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज राउंड ट्रिपिंग. इधर क्या होता है, तुमको समझाता हूं. पहले तुम मुझे बोलो कि ये तीनों में से सबसे बेस्ट इंडिया के लिए कौन सा है, FDI, FII, FPI? FDI is the best. Second best? FPI. And third is FII. मतलब FII इतने अच्छे नहीं होते. मैं तुमको समझाता हूँ कौन है ये. कितनी बार यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हवाला ट्रांजैक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट. उसमें क्या रहता है, ये सोचो इंडिया है, इंडिया में ब्लैक मनी है. सोचो पॉलिटिशियंस के पास में बहुत पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा पैसा अब्रॉड ट्रांसफर करते हैं हवाला के थ्रू. हवाला में क्या होता है, एक ऐसा अंडरग्राउंड रैकेट रहता है, वो लोग जाके दे देते हैं और तुमको अब्रॉड में वो लोग डाल देंगे. तुम सोचो दुबई में हो, तुमको वो दुबई में अरेंज करवा के दे देंगे पैसे. अब ये लोग क्या करते हैं दुबई में, सोचो वही पॉलिटिशियन है, इंडिया का ही पॉलिटिशियन है, उसके पैसे अब्रॉड चले गए. समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये पॉलिटिशियन FII बोल के इंडिया में आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करके ऐसा आएगा, ऐसा इधर पीछे छुप जाएगा ये इंस्टीट्यूशन के, और फिर वो इंस्टीट्यूशन में अपनी कोई कंपनी में, ट्रस्ट में, एक्सेट्रा में कोई इन्वेस्ट कर देगा. तो हुआ क्या, अपने को लग रहा है कि ये कंपनी में फॉरेन का पैसा आया, बट अल्टीमेटली फॉरेन का पैसा है क्या, कि ब्लैक मनी को घुमा के आया है. तो ब्लैक मनी इधर जेनरेट हुआ था, घूमा दुबई में और वापस घूम के इंडिया में आ गया है. सो जनरली FIIs आर नॉट गुड, बट स्टिल व्हाट हैपेंस, इतना पैसा आता है कि गवर्नमेंट ज्यादा कुछ एक्शन लेती नहीं है. बिकॉज एक 2008 में एक्शन लिया था
FIIs के ऊपर कि अभी आप लोग का नाम बताना पड़ेगा. सीधा सिंगल डे इंट्राडे क्रैश हुआ था, बिगेस्ट इंट्राडे क्रैश, 2000 पॉइंट मार्केट गिर गया. तो ये हम लोग जानते कि इसके पीछे कोई है, बट ज्यादा उनको छेड़ते नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को भी पैसे की जरूरत है. समझ में आया? तो FIIs आर नॉट रियली दैट गुड, बट मजबूरी है, पैसा है उनके पास, तो हम लोग उनको एनकरेज करते हैं. लेट्स सी. FDI, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक, FPI 2, तीसरा FII. FDI क्या होता है? कंपनी या इंडिविजुअल who is an entity in one country is planning to have controlling ownership. So जो JV रहता है तो वो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग बिजनेसेस को चलाएंगे, सजेशन देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे. JV जैसा समझ लो, जॉइंट वेंचर जैसा. तो इट्स लाइक अ जॉइंट वेंचर, मर्जर्स एंड अमैलगमेशन. ये फर्स्ट. सेकेंड क्या है? FPI. FPI is an investment by a foreign entity एंड नॉन रेसिडेंट्स. तो एंटिटी भी कवर है गूगल जैसी, और नॉन रेसिडेंट भी कवर है मार्क जुकरबर्ग जैसा, इन इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग द शेयर्स. द इंटेंशन इज टू एंश्योर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इंडिया. दे ऑल्सो इन्वेस्ट, बट दे हैव अ लोअर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देन FDI. FDI में बहुत ही बड़ा कंट्रोल है, वो लोग डे टू डे पार्टिसिपेशन करेंगे, जबकि FPI में थोड़ा कम होगा. और सबसे लीस्ट कौन होगा? चोर लोग, तो थोड़े हो सकते हैं. ओके, सो इट्स इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन सिक्योरिटीज. दीज इन्वेस्टर्स इंक्लूड म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एक्सेट्रा. देयर इंटेंशन इज नॉट टू कंट्रोल द कंपनी, रन द कंपनी. उनको मतलब ही नहीं है. उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर मार्केट में डालो. हेजिंग एक स्टॉक मार्केट टर्म है जिसमें अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं टू गेन हाई रिटर्न्स विथ क्विक एंट्री एंड एग्जिट. आज डाला कल निकल दिया. अब डिफरेंसेस बिटवीन FDI एंड FII. क्या डिफरेंस है? ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाई करके ये लोग एक अपनी खुद की कंपनी चालू करते हैं. इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों ही डिफिकल्ट है. आज हीरो होंडा ऐसे एकदम इजीली स्प्लिट नहीं हो सकती है, एयर एशिया ऐसी ही स्प्लिट नहीं हो सकती है. FII में आज खरीदा कल बेच दिया. ये लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल डालते हैं, ये लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों डाल सकते हैं. ये फंड, स्ट्रैटेजी, नॉलेज, नो हाउ सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जैसे बिजनेस पार्टनर्स कैसे करते हैं. ये खाली फंड्स देंगे. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं इंडिया को. ये इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं हेल्प करते, बल्कि वॉलेटिलिटी मार्केट में लेके आ जाते हैं, फ्लक्चुएशन, ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को. ओके, फिर नेक्स्ट FDI और FPI. नाउ FDI, they get substantial interest in the country. FPI क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, पैसिव होल्डिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग कि यार पैसा डाल के रख दो, डिविडेंड आते रहेगा. तो पैसिव रहता है, इनका डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत कम होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, एंड सो ऑन. नाउ कमिंग टू दिस सैम्पल क्वेश्चंस. सो द IRDA, इसको IRDA एक्ट भी बोलते हैं, came into force in 1952. What is the excess of exports over import called? It's called as a favorable balance of trade. Dash is an investment by a company individual with the hope of getting controlling ownership. तो controlling FDI. फिर KVRK is called as राष्ट्रीय कृषि कल्याण योजना. एंड द लास्ट, द 12th 5-year plan कब था? 2012 to 2017. एंड दैट्स इट. एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर.